موجود ہے غار سور، جہاں پر ہمارے نبی نے ہجرت مدینہ کے وقت یہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرنا۔ پہاڑ کی جو ہائٹ ہے، جو بلندی ہے، وہ تقریباً 5,000 پہاڑوں کے پیچھے سے راستہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کو لوگ جن پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس طرف سے تقریباً 4 لوگوں ٹیکسی بھی جایا کرے، لیکن ہمارا مطلب کو بعض اللہ شہید کرنے کی وجہ سے حضور آپ یہاں اس غار میں آپ کے اسما بنت ابو بکر یہاں حضور کے ویلکم برادر، ویلکم ماما، ویلکم اپنے والد کا ویلکم کے لیے پہاڑ سے بچ کر یہاں ان کے لیے ایک بنا تھا۔ حضور کے ایک صحابی یہاں بکریاں لے کر آتے، بچے کو بھی چھوڑ کر حضور کی خدمت میں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ وہ یہاں رات کو غار کے دہانے کھڑے ہو جاتے، پہرا دیتے، صبح شہر میں تشریف لے جاتے۔ مکہ کا زیارت ہے آپ لے کے جاؤ کو ہدیہ کا سامان ملے گا۔ ناظرین، آپ اب یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نمرہ مسجد ہے جو عرفات کے میدان میں موجود ہے۔ حجاج اکرام یہاں پر ظہر کی نماز ادا کر کر نکل جاتے ہیں۔ اسی مسجد میں بہت بڑی مسجد ہے یہ، یہیں پر حجاج اکرام نمرہ مسجد میں نماز ادا کر یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو پہاڑ ہے وہ دکھائی دے، اس کا نام ہے جبل رحمت، اسے کہتے ہیں رحمتوں والا پہاڑ۔ یہ پہاڑ پہلے بڑا تھا، اسے کاٹ کے ابھی اس شیپ میں کر دیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی، یہاں پر حضرت حوا حوا سے یہاں زمین پر پہلی بار 300 سالہ کے بعد یہاں ملاقات ہوئی۔ یہ دیکھیں یہ پلر کے طور پر ایک نشانی کے طور پر یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے گنبد سا بنا ہوا ہے، یہ صرف نشانی کے طور پر 100 سال یہ پہلے بنایا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ دوسرا دیکھیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع مسجد نامرہ، وہاں سے آپ یہاں آئے اپنی اپنی اصلاح بتائے۔ حضور نے پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر حضور نے امت کو بخشا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت کو کہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت بہت گنہگار ہے، میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہاں پر حضور نے امت کی بخشش کی دعا مانگتے مانگتے حضور جب مسکرا اٹھے، صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، حضور کہنے لگے حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کے حکم سے حاضر ہوئے، یہاں اللہ نے امت کی بخشش کا وعدہ، یہاں پر ہی امت کی بخشش کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور سے لیا۔ دیکھیں یہاں ابھی جو ہے ہم نے دعا کرنی ہے، دعا کی 3 صورتیں۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا حضور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہاری دعائیں کچھ ایسی ہیں، لیکن آپ نے ابھی دعا کی، کچھ دن پہلے دعا کی یا اللہ ہم تیرا خانہ کعبہ دیکھیں، حرمین شریفین کی زیارت کریں، دیکھیں آپ کی دعا قبول۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا صلہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد ملتا ہے، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آپ کو صلہ ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ کچھ دعائیں تمہاری ایسی ہوں گی جن کا صلہ، جن کا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں روز محشر قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور ان دعاؤں کا صلہ جو قیامت کے دن ملے گی وہ دنیاوی دعاؤں کے اس صلے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ تو دعائیں جو ہیں ہمیشہ سے قبول ہوتی ہیں، دنیا میں نہ ہوئی آخرت میں لازمی سے قبول ہوتی ہے۔ اس
वफ़ी हसन ने फरमाया कि ऐसा साहबा ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा कहो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। देखिए, जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं यहाँ से ऊपर जाए, दुआ मांगते। नाजरीन, ये जो अब आप देख रहे हैं ये मकाम जबल रहमत का पहाड़ है, जहाँ पर दुआ कबूल होती है। हुज्जाज इकराम यहाँ पर आकर जबल रहमत के पहाड़ पर दुआएं मकबूलियत करते हैं। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा यहाँ पर ही मुलाकात हुई थी, यहीं पर उनकी दुआ कबूल हुई थी। ये मक्का शहर के मीना के थोड़े ही पास में ये मकाम मौजूद है। अभी हम जबल रहमत के पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। ऊपर से आप मंज़र देख सकते हैं कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अभी थोड़ा चढ़ने का बाकी है। ये देखिए, इसी मकाम को जबल रहमत का पहाड़ कहते हैं। एक निशानी के तौर पर ये बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे हुज्जाज इकराम आकर दुआएं फरमाते हैं। यहाँ पर दुआ कबूल होती है। नाज़रीन, आप जो देख रहे हैं यही इसी मकाम पर 2 रकात नफिल नमाज अदा कर दुआ करते हैं। देखिए, खूबसूरत नज़ारा, मंज़र, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी ज़ियारत कर सकें। अगर आप भी उम्रा पर जाना चाहते हैं तो अल फरीद टूर्स एंड ट्रैवल्स आदुनी की जानिब से जा सकते हैं। बहुत ही मुनासिब रेट में ये उम्रा करवाते हैं और आदुनी से आदुनी तक लेकर जाते हैं। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है इनका। खाने में 3 टाइम खाना, रूम सर्विस। हज का रुकन जो रबी अदा किया जाता है, जमरात में शैतान को कंकर मारना, हाजत में हिस्से की 50 या 70 कंकर यहाँ से लेकर जाते हैं और शैतान को मारते हैं प्लास्टिक की बोतलों या थैलियों में। अरफा खाना काबा गिराने आया हूँ और तुम अपनी जानवरों की बातें करते हो। हजरत अब्दुल मतलब ने खूबसूरत जवाब दिया। हजरत अब्दुल मतलब कहने लगे कि तुम हमें हमारे जानवर वापस कर दो। ये बैतुल्लाह शरीफ, ये खाना काबा जिसका घर है, वो खुद इसकी हिफाजत फरमा ले। तारीख ने देखा कि इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई कि अल्लाह के हुक्म से छोटा परिंदा जो अबाबिल है वो चोंच में कंकर लेकर आता। किसी कंकर किसी हाथी को लगती, किसी फौजी को लगती, उसके जिस्म को चीरते हुए जमीन में धंस जाती। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबराहा की फौज पर अजाब नाज़िल किया। देखिए, यहाँ बिना में वो जगह है वादी महसर, यहाँ पर अबराहा की फौज पर अल्लाह का अजाब नाज़िल है। छोटा परिंदा जो अबाबिल है, अगर आप हरम जिक्र फरमाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी इस जगह से गुजरो, तेजी से गुजरो, सर को ढांप लो और अस्तग़फिरुल्लाह का वर्द करते हुए गुजरो, क्योंकि ये अज़ाब इलाही की जगह है। यहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ अबराहा की कौम। देखिए, अबराहा एक ईसाइयत से, जो ईसाई है उनसे ये यहूदी था, तो उसने क्या किया, यमन में कब्जा किया हुआ था। तो ये इथोपिया कंट्री थी, वहाँ से ये ताल्लुक दिखाई दे रही है। ये राइट साइड पे खाली सी जगह आपको दिखाई दे रही है, ये वादी महसर है। इसी जगह पर अबराहा की लेफ्ट साइड पे पहाड़ के ऊपर आपको ये गुंबद सा बना दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड में बाएं हाथ की तरफ देखिए, आपको गुंबद सा बना दिखाई दे रहा है। छोटा सा गुंबद बना हुआ है, हल्का सफेद रंग का। ये मुकाम इस्माइल है। इस जगह को जबल भी कहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका बेटा हजरत इस्माइल खैर है। 70 से ज़्यादा अंबिया किराम ने इस मस्जिद में नमाज अदा की है। लेफ्ट साइड पे देखिए, आपको ये सीमेंट की पुलें दिखाई दे रही है, परिचय से बनी हुई है। इसके ऊपर ये जो छतरी बनी हुई है, सफेद कलर की एक छतरी, अम्ब्रेला जो बना हुआ है, इसी लाइन में 3 शैतान मौजूद हैं। इसी लाइन में 3 शैतान मौजूद हैं। यहाँ ये जमरात का एरिया है, हज का रुकन जो रमी है, ये शैतान को कंकर मारना, यहीं पर ही हाजी कंकर मारते हैं। ये बड़ा जो है, ये जो बड़ी छतरी है, बड़ा शैतान है, उसके पीछे भी छोटी छतरी है, फिर 3 छतरी एक लाइन में है। यहाँ ही
शैतान को कंकड़ियां मारते हैं हज के दिनों में हाजी। राइट साइड में देखें तो ये लड़के जो इन खैमों में क़याम करते हैं। इन खैमों में आपके होटल जैसी मिलती जुलती सहूलियात यहाँ हाजों को मैसर होती हैं। यहाँ कलीनें वगैरह बिछी होती हैं, ठंडे पानी का वैसे इंतज़ाम होता है, दूसरे यहाँ AC वगैरह इंस्टॉल होते हैं। इसके अलावा जो इन खैमों का जो कपड़ा इस्तेमाल होता है वो वाटर प्रूफ भी होता है और फायर प्रूफ भी होता है। ये इन खैमे के कपड़ों में ना पानी आ सकता है, ना इन खैमों के कपड़ों को आग लग सकती है। 90s-80s का वाक़या है, आज से करीब 40 साल पहले खैमों में आग लगी थी, जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने जो खैमों का कपड़ा है वो फायर बार हरीमैन शेफैन की हाजिर नसीब फरमाए। जज़ीराम देखिए अभी जोराना की तरफ रवाना है। हरम से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है ये मस्जिद जोराना। यहाँ से हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से उम्रे का एहराम बांधा। तकरीबन ये निशान पड़े हैं, ये जंगे हुनैन के सहाबा के यहाँ उनको तदफीन किया गया। जंगे हुनैन हुई, ताइफ वालों के साथ फतह मक्का हुआ, तो उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर जंग हुई। एक बार से आफातिया और 3 बार पड़े और इनके रिसाले से तो यहीं पर हजूर वहाँ जंग हुई इस तरफ 10 किलोमीटर के फासले पर। वहाँ आकर आपने यहाँ जो जंग हुनैन के शोहदा थे वहाँ उनकी तदफीन की। फिर आपने ना यहाँ इस जगह पर पड़ाव डाला, 3 दिन आप यहाँ रुके। पानी की शदीद यहाँ किल्लत का सामना था। हजूर ने इस जगह पर हाथ में असाथा यानी डंडा था, ज़मीन पर मारा, यहीं पर ज़मीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा। साहबा ने जब इस चश्मे का पानी जो नमकीन था, गर्म था, हजूर ने उसमें अपना लुहाब दन शामिल फरमाया। इस कुएँ का पानी मीठा भी हो गया, ठंडा भी हो गया। तकरीबन 3000 साहबा इकराम के साथ आप यहाँ रुके, यहाँ से गुस्ल फरमाया, यहाँ से उम्रे का एहराम बांधा, उम्रे की नीयत की, उम्रा अदा किया। जोराना से उम्रा करना सुन्नत भी है और बड़ा उम्रा भी कहलाता है। यहाँ से हमारे नबी ने उम्रे का एहराम बांधा है, नीयत की है। देखिए पहले यहाँ इस कुएँ का पानी आता था, अब इस कुएँ को बिल्कुल बंद कर दिया, इसका पानी बिल्कुल भी नहीं आता। उस तरफ देखिए इस टहनी के नीचे से वो पानी वगैरह लगे होते, पहले इसका पानी आता था, इसको मोटरें से या किसी वजह से खींचते थे, क्योंकि ज़ेर ज़मीन जो मक्का है यहाँ का पानी नहीं है। 100 फीट 500 फीट पे अगर नीचे जाते हैं तो उसमें पत्थर ही पत्थर है, नीचे पानी नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में 50 फीट 100 फीट तक नीचे पानी आ जाता है, सेम आ जाता है। तो मक्का में यहाँ का पानी नहीं है। ये कुआं था जैसे आब ज़मज़म का चश्मा है मक्का में, तो हर सेकंड में वो पानी दे रहा है या हर घंटे में वो पानी दे रहा है। कोशिश करें दुरूद सलाम पढ़ लें, यहाँ से वहाँ पर इस तरफ और सामने की तरफ आ जाए, ठीक है।